लेट अस सी दी हेक्साडेसिमल नंबर। क्या होगा इसका रेडिक्स? व्हाट डू यू सी? हेक्साडेसी, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? हेक्स प्लस डेसी कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स रेडिक्स? 16 हेक्साडेसी। तो हमने क्या देखा, जब डेसिमल था तो रेडिक्स 10 था, तो हमने यूज किया 0 to 9। बाइनरी रेडिक्स 2 तो हमने यूज किया 0 to 1। बाद में ऑक्टल रेडिक्स था 8 तो हमने यूज किया 0 to 7। अब हेक्साडेसिमल है तो कितना यूज करेंगे? 0 to 15। 0 to 15। बट यस, बट अपना प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करने के लिए वो 0 to 9 ही है, यानी कि 10 सिंबल है और बाकी के सिंबल के यूज करना। तो 0 to 9 हम न्यूमेरिक रिप्रेजेंट करते हैं और बचे हुए 10 to 15 के लिए हम लोग यूज करेंगे अल्फाबेट, यानी ये 0 to 9 और ये A to F। समझ में? यानी अगर डेसिमल में 0 लिखा तो हम 0, 1 लिखा तो 1, ये डेसिमल है और ये हेक्स है तो ये 1। ऐसे करते करते 9 के लिए 9 ही रहेगा, लेकिन डेसिमल 10 यानी A, डेसिमल 11 यानी B, डेसिमल 12 यानी C, डेसिमल 13 यानी D, 14 means E and 15 means F. Have you understood this? These different 16 symbols or tokens we are using different symbols. 0 to numeric and A to F alphabet. So it is a alphanumeric code we can say to represent any hexadecimal number system. हम लोग ये represent करने के लिए इस तरीके से करने वाले 0 to F, 0 to F ऐसे 15, 0 to 15 यानी total 16 symbols use करेंगे. So let us take any number. Let's say any hex number. Let's say if it is written like this one, 1E, what does it mean? So similar to this, E into radix to power 0 plus 1 into radix to power 1. Now 1 into 16, it will be 16. E means 14. F means 15. 14. So it will be 14 and 16 to power 0 is 1. So it will be simply 6 plus 4, 20, 6 plus 10 and this will be 30. So this is a 30 decimal equivalent, or you can say 1E in hexadecimal is equivalent to decimal 30. Is it clear? Let us take one more example, then the things will be clear. 2ED. So how we can say D into 16 to power 0, E into 16 to power 1 plus 2 into 16 to power 2. Now 16 to power 2 is 256. E means 15. Oh, sorry, 14. और D यानी कितना? 13 into 1, 16 to power, this is 1. So if you go on doing calculation, you will get the equivalent number for this one, isn't it? So it will be 256 into 2 plus 14 into 16 plus 13. So it will be 749 in decimal. चलो और एक देखते हैं 3F.AB. अब बताओ आप लोग, मैं वैसे वैसे करूँगा. What should I write? F into, yes, F into 16 to the power 0. 16 to power 3 into 16 to the power 1. Then A into 16 to power minus 1 plus B into 16 to power minus 2. now what should I write here? This will be 3 into 16. F means 15. 15. A means 10. 1 and this will be 1 by 16 and B means 11. 11. 1 by 16 square. So like this you'll have to perform. Okay, so this will be 3 into 16 HR. This will be 48 plus 15 plus 10 by 16 0.625, or you can do it by calculator, there is no problem. Will come out to be 0.04296675 plus 0.625 plus 15. So this total comes out to be 63.66796675. Is it okay? कर सकोगे आप लोग? प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्ट आंसर बाद में आप लोग कैसे भी कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा दैट इनटू रेडिक्स टू पावर 0, टेंस प्लेस पे है दैट इनटू रेडिक्स टू पावर 1,
फ्रैक्शन के बाद पहले नंबर रेडिक्स टू पावर -1, नेक्स्ट नंबर रेडिक्स टू पावर -2, इस तरीके से करते जाना है। एक एग्जांपल फिर से। अच्छा ठीक है, चलेगा। मैं लेता हूँ अब 1 2 3 पॉइंट सी ई, ठीक है। अब देखो 3 इंटू 16 टू पावर 0, 2 इंटू 16 टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 टू पावर 2 प्लस सी यानी कितना, ए यानी 10, बी यानी 11, सी यानी 12, ए यानी 10, बी यानी 11 और सी यानी 12। 12 इंटू 16 टू पावर -1, ई यानी कितना, 14 to 16 to power -1. So like this you'll have to do into 3. So this will be 12 by 16 and this will be 14 by 256. So you can do the calculation and you will get the equivalent decimal number. Okay. So एक याद रखो कैरेक्टरिस्टिक कि जैसे रेडिक्स बढ़ता है तो नंबर का साइज छोटा होता है, जैसे रेडिक्स छोटा होता है तो नंबर का साइज बड़ा होता है। जैसे बाइनरी में सिर्फ 2 ही सिंबल है 0 और 1, इसके लिए अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो बहुत लंबा हो जाता है, isn't it? तो वो बहुत बड़ा होते जाता है। So I hope it is clear to you. So now what will be the next stage? We need to convert given decimal number to hexadecimal. How to do it? Now we need to convert a decimal to hexadecimal. एक ही प्रोसेस है, सभी के लिए कॉमन प्रोसेस है। क्या करेंगे, डबल मेथड यूज करना है। तो अगर गिवन नंबर कुछ है तो उसको हम चेंज करेंगे। सपोज 63 है इन डेसिमल, तो क्या करेंगे आप उसको डिवाइड करेंगे। 63 डिवाइड बाई, हाँ अब बोलो, डिवाइड बाय 16, थोड़ा पंच पास कितनी रिमाइंडर्स कितना रहेगा, 48, 50 ना बचा, 63 माइनस 48, 15 बचा ना रिमाइंडर की, कितना बचा, क्वोशिएंट इज 4, रिमाइंडर इज 15। हाँ, तो 15 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, f। यस। अब ये 4 को यहाँ लाएंगे, डिवाइड बाय 16, जाता नहीं, बचा है 4। अब क्या होगा, 63 डेसिमल इक्विवेलेंट टू कितना हेक्साडेसिमल होगा, 4f। हाँ ये मत भूलना, ये रिवर्स ऑर्डर में लेना है। 4f किसको नहीं समझ में आया बताओ तो जरा। हाँ सर वहाँ पे 3 चाहिए ना, कहा 3 चाहिए सर 4 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। ओह, सो 3 इकट्ठा चाहिए। यस सो 3 इकट्ठा चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने यही वाला प्रॉब्लम दिया था, ये 3f और यहाँ पे 63, यहाँ का 63 उठा लिया, इसका इक्विवेलेंट 3f आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और करते हैं, क्योंकि ये अपने हाथ से गलती ज्यादा हो गई, इसलिए और एक करते हैं। अभी मैं लेता हूँ, इसका मुझे चाहिए हेक्साडेसिमल, तो चलो 4098 डिवाइड बाय 16, बताओ इंटीजर पार्ट क्या आएगा, डिवाइड बाय 16, 256 आ रहा है क्या, यस सर। और फिर रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर इज 2। आप करो 256 इंटू 16 करो तो 4096 आएगा, तो 98 यानी 2 ही ज्यादा है, 4096 होता है 256 इंटू 2, तो 4098 डिवाइड बाई 16 किया तो 256, रिमाइंडर इज 2। So now this 256 will come here, divide by 16, so what it will be, पूरा चले जाता है भाग, तो ये 16 is a quotient, remainder is 0, again here 16 divide by 16, 1, remainder is 0, then 1 divided by 16, it will be 0, it will be 1. कितना हो गया, 4, ये समझ में आया कि नहीं है, 4098 in decimal is equal to 1002 into 16. चलो चेक करते हैं, this 2 into 16 to power 0 plus 1 into 16 to power 1 2 3, बाकी तो सब 0 0 है, 16 to power 0, 16 to power 1, 16 to power 2 and 16 to power 3. So 16 to power 3 is 4096 plus 2, that is 4098. अब फ्रैक्शनल के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शनल रहेगा तो if the number is fractional in decimal, उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई, यस, मल्टीप्लाई बाय 16, और फिर उसी तरीके से उसके रिमाइंडर्स निकाल के कर लोगे। सो इन दिस वे वी हैव सीन ए बाइनरी नंबर, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल नंबर, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, देन वी हैव सीन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब 2-3 चीजें अपने को करना है, हमको बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है, मल्टीप्लिकेशन देखना है, बट बिफोर दैट
हर चीज में हमारा एक कॉमन फैक्टर था, क्या था? डेसिमल। या तो हम डेसिमल टू वो नंबर सिस्टम कन्वर्ट कर रहे हैं जो भी हम नई सिस्टम पढ़ रहे हैं, या वो नए सिस्टम टू डेसिमल कर रहे हैं। मान लो कि डेसिमल नहीं है, आई वांट टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल छोड़ के। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमने अभी तक के कोई अगर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, तो डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा, देन डेसिमल टू ऑक्टल या ऑक्टल टू डेसिमल किया, हेक्साडेसिमल टू हेक्स या हेक्स टू डेसिमल किया। आप देख रहे सब में एक डेसिमल कॉमन है, कहीं ना कहीं डेसिमल कॉमन है, लेकिन अब हम इनको हटा देना है, हमको ये नहीं चाहिए। ये आपस के तीनों में कैसे कन्वर्शन करना, और वो बहुत इजी है। आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न दैट वन? कि अगर हम Yes, sir. चलो तो मैं आपको बताऊंगा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो पक्का पढ़ूंगा, और बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं करना पड़ता है। तो लेट अस सी, हम लोग अब देखेंगे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्स, ये आपस में, मतलब बाइनरी टू हेक्स, हेक्स टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्स, हेक्स टू ऑक्टल, ये आपस में कन्वर्शन कैसे करना। ओके, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं और बाद में बात करते हैं। अब इन सब की खूबसूरती क्या है मालूम है क्या? बाइनरी यानी इसका रेडिक्स 2 रेज़ टू पावर 1, मतलब 2 है, इसका 2 रेज़ टू पावर 3 और इसका 2 रेज़ टू पावर 4, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं 2 से कनेक्टेड है। ये 8 है तो 2 रेज़ टू पावर 3, ये 16 है तो 2 रेज़ टू पावर 4, और ये बाइनरी है तो 2 रेज़ टू पावर 1। समझे? तो इस तरीके से इसका फायदा हमको ये पड़ता है कि हमको कोई भी मैनिपुलेशन करने के लिए मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेट करना पड़ता है। कैसे? तो एक एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से गिवन इट इज बाइनरी नंबर, ये बाइनरी है, इसको ऑक्टल करते हैं और इसी को हेक्साडेसिमल करते हैं। तो कैसे करेंगे? एक तो आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो डायरेक्ट आता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? अगर मुझे ए टू बी जाते आता है, एक डेस्टिनेशन, एक ए से बी जाते आता है, और मुझे मालूम है ए से सी भी जाता है, सी भी जाते आता है, अब मुझे बी टू सी जाते नहीं आता, मुझे मालूम नहीं वो रास्ता, तो ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा? बी टू ए आ जाऊंगा और फिर ए टू सी जाऊंगा। तो ऐसा ना करते हुए डायरेक्ट कैसे जाना, ये मैं बता रहा हूँ। यानी कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आसान था कि बाइनरी टू डेसिमल कर दो और डेसिमल टू ऑक्टल, वो आपको मालूम है, बाइनरी टू डेसिमल कर दो और फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। लेकिन इसमें 2 बार कन्वर्शन करना पड़ता है। तो इससे भी ज्यादा आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको कि जस्ट ये गिवन जो नंबर है बाइनरी, इसको सिर्फ ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग किस तरह करना है कि अगर ये बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टल कर रहे हैं, तो ऑक्टल यानी 2 रेज़ टू पावर 3, तो 3 नंबर का आपको ग्रुपिंग करना है। ये 3 नंबर का ग्रुपिंग, ये डेसिमल पॉइंट से, मतलब कैसे? ये पॉइंट है, इसके बाद ये 1 1 0 एक ग्रुप, इसके बाद ये 1 इधर बचा ये वाला, तो इसके पहले समझ लेना कि 0 0 है। सिमिलरली ये वाला ग्रुप 0 1 1, ये एक 3 का, उसके बाद कितना बचा है? 1 1, इसके आगे 0 लगा दो। ये हो गए 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप हो गया। समझ में आया क्या 3 का ग्रुप कैसे किया मैंने? Yes, sir. बस अब इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में लिख देना है, यानी कि ये बाइनरी की वैल्यू क्या है इन डेसिमल, वही ऑक्टल हो जाएगी। क्योंकि 3 का जब ग्रुप बनाते तो मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा? 1 1 1, उसका इक्विवेलेंट होता है 7 डेसिमल में, तो ऑक्टल में भी 7 का इक्विवेलेंट 7 ही रहता है। ऑक्टल और डेसिमल 7 तक के सेम ही रहते हैं। तो 3 का ग्रुप ही बनाया तो मैक्सिमम 7 ही रहेगा, मिनिमम 0 रहेगा। तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल लिखना है, ऑक्टल है। तो ये 1 1 यानी कितना? 3, 1 यानी कितना? 1 पॉइंट, 0 1 1 यानी कितना? 1 2, 2 प्लस 1 3, और 1 1 0 यानी 1 2 4, 4 और 2 6, ये हो गया ऑक्टल। ये समझ में आया क्या आपको? पहले सोचो। ये देखो, ये डेसिमल पॉइंट जो है ना, देखो मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये गिवन नंबर था 1 0 1 1.011111, ठीक है, पॉइंट है। इसके बाद 3 का ग्रुप बना दो, और लास्ट में ये है नहीं कुछ तो यहाँ 0 लगा दो। इसके इधर कुछ नहीं है तो लगाओ या नहीं लगाओ, ये 0 0 मीनिंग होता है। अब ये ग्रुपिंग समझ में आया क्या? 3 का ग्रुप डेसिमल पॉइंट से लेना है। अब ये 3 के लिए इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर या ऑक्टल नंबर लिखना है आपको। तो आपको मालूम है कि 000 यानी कितना होता है? 0, 001 यानी कितना होता है? 1, 010 यानी कितना होता है? 2, ऐसे करते करते 111 यानी कितना होता है? 7। बस ये इक्विवेलेंटली लिखना है। तो 001 यानी कितना हो जाएगा? बोलो। 1 1, और डबल 1 यानी कितना हो जाएगा? 3 3.011 कितना होगा?
डबल वन यानी फिर से 3, हाँ, और 110 यानी 6 ट्रिपल वन यानी 7, एक पहले 6 हो गया। ये ऑक्टल में हो गया। आप चाहे तो एक्चुअल में दोनों का अगर आप डेसिमल करेंगे तो सेम आएगा। इतना आसान है। कुछ करना पड़ा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन? कुछ नहीं, बस ग्रुपिंग प्रॉपर करना है। अब इसी का हेक्साडेसिमल करना रहा तो कैसे करेंगे? 4-4 का ग्रुप बनाना। यानी नंबर था 1011.0111, तो 4-4 का ग्रुप बनाओ। इसमें से ये 1-4, ये 1-4 और ये 1 बच गया, इसलिए 000 लगा दो इसको, 1-4, और इसका जस्ट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख देना है। तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा कि 0000 यानी 0, ऐसे करते करते जब आप 1001 यानी 9, 1010 यानी 10 इसको लिखेंगे A, 1011 यानी B, ऐसे करते करते जब पूरे 111 हो जाएंगे तो क्या आएगा? F 15 4-4 का ग्रुप बना क्यों रहे? समझ में आया ना? 2 to power 4 is equal to 16। ये 4-4 का ग्रुप, क्योंकि 0 to 15 ये नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बाइनरी में 4 बिट्स लगेंगे, क्योंकि 15 मैक्सिमम यानी ये यानी 15, 4 बाइनरी के लिए 4 बिट्स लगेंगे ही लगेंगे। ऑक्टल में मैक्सिमम 7 था तो हमको 3 बीट लग रहे थे। बाइनरी एक की है तो 0 या 1 से काम हो जाता है। तो ये इसका इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा? 1 2 4 8, 8 और 2 10 और 1 11, कितना होगा? 11 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A को 10 से, तो 11 कैसे? B पॉइंट 111 क्या होगा? 7 और 1000 8 पक्का सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes sir चलो एक और यही वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा हटके लेते हैं, यानी आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना? सपोज ये 11.011.1101011 कुछ भी ले लिए बाइनरी। आप मेरे को हर टाइप के पूछना है ना, मैं सभी टाइप के कर लूंगा। तो सबसे पहले क्या करें आप बताओ? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है मुझे, क्या करूँ? 3-3 का ग्रुप बनाओ। एग्जैक्टली, यहाँ तो बना ही बना है। ये 3-3 का ग्रुप, ये 101 का एक ग्रुप। अब अरे ये बना ही हुआ है क्या? 011। अगर नहीं रहा तो एक 0 ऐड करने का दोनों एक्सट्रीम एंड में, ताकि गलती ना हो। एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी है इधर 0 ऐड करना, राइट साइड में। लेफ्ट का नहीं भी किए तो कुछ होता नहीं, लेकिन राइट साइड में करना ही करना पड़ता है, अदरवाइज मीनिंग चेंज होता है। तो ये जो फ्रैक्शनल पॉइंट यहाँ लिख दिया, अब उसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करना। 111 यानी कितना होता है ऑक्टल में? ऑक्टल बोलो या डेसिमल, सेम ही। 11 नहीं रे, 111 का 11 कैसे होगा? ये देखो 111, ये पूरे से पर 0 यानी 1, ये 2, ये 4 + 2 + 1, ये 2 to power 1 था, ये 2 to power 2 था। 4 + 2 + 1 कितना हो गया? 7। अब ये कितना हो गया? एक कम, 7 में एक कम, 110 यानी पक्का है ना? एक कम हो गया ना, ये 0 है ना, यूनिट प्लेस पे 0 यानी एक कम हो गया, ये नहीं है यहाँ पे, तो ये 6 हो जाएगा। 101 यानी कितना होगा? 4 + 1 5। समझ में आ रहा है ना? मैंने 4 + 1 क्यों बोला? ये 4 प्लेस पे 1 है और 1 प्लेस पे 1 है, 2 प्लेस पे नहीं है कुछ भी, 0 है। अब ये कितना होगा? 3 हाँ, कैसे? 2 + 1 3। तो ये क्या नंबर हो गया ऑक्टल में? अभी आया क्या सबको समझ में? 3-3 का ग्रुप करके इक्विवेलेंट नंबर लिखा है मैंने डेसिमल में, समझ में आया क्या? Yes sir अब सेम अपने को हेक्साडेसिमल में करना है। अभी हेक्साडेसिमल में करते वक्त ये क्या पहला बनेगा? 011 डेसिमल पॉइंट के बाद, उसके बाद इधर क्या बच गया? 2 1 बच गए ना, 2 1 बच गए, तो इसके आगे 0 है, लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। ये 4 का ग्रुप, इसके बाद 1 0 1 0, ये 4 का ग्रुप, और यहाँ बचे 11, तो इसके आगे 00 लगाना जरूरी है। अब बताओ क्या होगा? 111 यानी क्या? 7 वेरी गुड। 11 यानी क्या? 3 10 यानी कि 10 10 के लिए क्या सिंबल लिखूं? A ये कितना है? C 12 वेरी गुड, 12 करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। 12 के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? सी। तो हो गया हेक्साडेसिमल। कितना आसान है ना? Yes Yes, sir हाँ, अब क्या करते हैं? अब लेते हैं कोई तो भी ऑक्टल नंबर, तो 37.25 ये ऑक्टल है, और इसको हमको हेक्साडेसिमल करना है, इसको अपने को ऑक्टल करना है, बाइनरी करना है। इसमें याद रखना हमारा मीडिएटर बाइनरी है हर बात। जैसे पहले का मीडिएटर क्या था? डेसिमल, कि हर बात में डेसिमल टू दैट और दैट टू डेसिमल। यहाँ पे हर बात तो बाइनरी टू समथिंग और समथिंग टू बाइनरी, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अभी हमने 3-3 का ग्रुप बनाया था ऑक्टल में,
बस यहाँ 3 के ग्रुप में बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देना है। मतलब क्या है, ये है 37.25। तो हर ये फ्रैक्शनल पॉइंट यहाँ डेसिमल पॉइंट लिख दिया और हर एक को रिप्रेजेंटेशन करना है। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बिट में 0 1 0, करेक्ट है? यस सर। Yes, sir. 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 101. लग रहा है सबको सही। 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 111. कैसे याद हो जाता है ना 111 यानी 7। और 3 011. 011। चाहे तो इसको जब लिखते हैं बाइनरी तो ये पहला 0 छोड़ सकते हैं आप। 11 111.010 ये हो गया बाइनरी। और अब अगर हेक्साडेसिमल में करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल, instead of doing from octal to hexadecimal directly, you do from binary to hexadecimal. Why? Because to group in a 4 is easier. To make a group of 4 is easier, है ना? तो अब 4 का ग्रुप बना और उसका ये बना लेंगे। तो ये 4 का ग्रुप में क्या होगा, पहला 111, उसके बाद इधर बच गया 1, इसके बाद यहाँ पॉइंट 0101 एक ग्रुप, और इसके बाद क्या बचा है, ये 1, इसके आगे लगाना पड़ेगा 000। ये ठीक किया क्या मैंने? यस सर। तो 4 बार 1 यानी क्या लिखेंगे? F. पक्का? वो 1 50? के पहले 0. ये 1 के पहले लगाओ, 3 0 लगाओगे तो भी वही रहेगा, 1 ही रहेगा, इसलिए लगाया नहीं मैंने। अब नहीं सर, राइट साइड में ये लगाया ना, ये क्यों लगाया पूछ रहे क्या? वो 1 के पहले एक 0 था ना सर। 1 के सॉरी, पहले एक 0 था। करेक्ट। ये 0 छूट गया मेरे हाथ से ना। 0101, इसके बाद 01 था, 0100। करेक्ट, बढ़िया। इस तरीके से अलर्ट रहो। सो 1F पॉइंट, ये 101 यानी कितना हो गया? 5. करेक्ट। और 100 4. हो गया इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। कितना आसान है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसको भी, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो, ऑक्टल का भी डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो, सेम आएगा। चलो अब एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद कुछ एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। क्या एग्जांपल लेता हूं? अब मैं ले लेता हूं हेक्साडेसिमल, यही वाला ले लेता हूं प्रॉब्लम। 1F.54 ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। इसको ऑक्टल में करना है, इसको बाइनरी में करना है, किसी में भी बोले पहले बाइनरी करना सबसे आसान। तो 0.5 को बाइनरी कितने के ग्रुप में बनाओगे? बाइनरी कितने ग्रुप में लिखोगे? 3 का है को हेक्साडेसिमल है ना, यहाँ 4 का ग्रुप बनाना है। क्यों 4 का ग्रुप? क्योंकि F जो रिप्रेजेंट करना है, ये मैक्सिमम नंबर, ये 15 होता है डेसिमल में, ये रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बीट लगते ही लगते हैं, इसलिए 4 का ग्रुप बनाना है। तो 5 कैसे लिखते हैं हम? 5101, तो यहाँ 0101, 4 और 1 5। 4 कैसे लिखते हैं? 0100। आया ध्यान में? 1 2 4। F कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 बार 1 लिखते हैं, और ये 1 को 1 ही लिख सकते हैं, या फिर 3 0 लगा सकते हैं आप इस तरीके से। आया क्या समझ में? देखो तो। यस सर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 5.0101। ये चाहे तो लास्ट के 0 आप छोड़ सकते हैं, है ना? ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। और अब इसको ऑक्टल करना आसान है ना? कैसे करोगे ऑक्टल? इसको कितने का ग्रुप बनाओगे? 3 का। 3 का ग्रुप बनाओ। 111 एक ग्रुप, 11 एक ग्रुप, इसके आगे 0 है समझ के चलो। 0.010 का एक ग्रुप, 101 का एक ग्रुप। तो दिस इज 3, दिस इज 7.2, और ये कितना हो गया? 5. तो मेरे ख्याल से ऑल वेराइटीज के प्रॉब्लम हमने देख लिए। हमने डेसिमल टू वो नंबर सिस्टम देखा, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल देखा, एनी नंबर सिस्टम बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, सब चीज देख ली। आई थिंक इट इज इनफ फॉर द डे। नेक्स्ट टाइम विल सी बाइनरी एडिशन, बाइनरी subtraction, then subtraction using addition, that is using 2's complement and 1's complement method.